Okay, guys. So today we will study about National Park of India. ठीक. So how many national parks are available in India, or you can say that in different states how many national parks are there. So we will start from Andaman and Nicobar. Okay, as you can see in Andaman and Nicobar there are 9 national parks. How many? 9. Okay, so you can remember these 9 national park. First is North Button. Okay, so it is very easy to remember North Button, and this is Middle Button. So you can easily remember North Button and Middle Button. And next is South Button. So you have to remember these national park: North Button, Middle Button and South Button. Okay, North Button, South Button, and next is Middle Button. So you can easily remember these three: North, South, Middle. And after that there is Saddle Peak National Park and Mahatma Gandhi Marine Park. Okay, and there is also Rani Jhansi Marine Park. So you can easily remember these two: Mahatma Gandhi and Rani Jhansi. Okay, and after that there is one more park named Mount Harriet National Park. Okay, so you will face some issue with this name, Mount Harriet. But Andaman Nicobar, as you know, it is made up of basically you can say islands. Okay, so Mount Harriet National Park is located here, and one more is Campbell Bay National Park. It is also important. It is being asked many times. So आपको ये सब लर्न करने पड़ेंगे, जिसमें कि मैंने ये एज यू कैन सी हियर आई हैव highlighted South Button National Park. Why? Because it is the smallest national park. It's the smallest national park in India. That is South Button. Okay. So आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, और इसमें ये इम्पोर्टेंट है साउथ बटन. एंड द लास्ट वन इज़ गैलेथिया नेशनल पार्क. एज यू कैन सी हियर गैलेथिया. Okay. So these are the नेशनल पार्क्स लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार. तो ये कुछ नेशनल पार्क है जो अंडमान निकोबार में मौजूद हैं. आफ्टर दैट come to next, Andhra Pradesh. So in Andhra Pradesh you have to remember this name, Papi Konda National Park. It is very important. Okay, so you have to remember this name, Papi Konda. Okay, it has been asked many times in SSC. इसको कई बार पूछा गया SSC में. ओके, चलिए नेक्स्ट इज वेंकटेश्वर. इट इज़ नॉट ऑब्वियसली, it may be asked okay in future, but the most important is Papikonda, as I told you. Okay, so I am making here star. Okay, after that there is Arunachal Pradesh. In Arunachal Pradesh both of these two are important, and the most important अगर मैं बताऊं इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो दिस वन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, नाम दफ़ा नेशनल पार्क. ओके, सो ये नाम आप याद रखिएगा, नाम दफ़ा नेशनल पार्क. ओके, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट. और नेक्स्ट इज़ मॉलिंग नेशनल पार्क. इट इज़ आल्सो लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश इज़ दिस साइड. ओके, इंडिया के ईस्ट साइड में. ओके, हियर अरुणाचल प्रदेश. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ आसाम. ओके, सो कम टू आसाम. हम पढ़ेंगे आसाम में कौन कौन से हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यही है. आसाम से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस. सो स्टार्ट करते हैं आसाम के नेशनल पार्क कुछ,
और ये कई बार पूछे गए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए तो देखते हैं वन बाई वन। काजीरंगा नेशनल पार्क एंड नामेरी नेशनल पार्क, मानस एंड डिब्रू साइखोवा एंड ओरंग, दीज ऑल फाइव्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको काजीरंगा, नामेरी, मानस, आसाम मानस, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन लग रहा है, उल्टा देखें तो मानस आसाम। ठीक है, डिब्रू साइखोवा, ओरंग और नामेरी काजीरंगा। ये जो फेमस है काजीरंगा, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ओके, वन हॉर्न राइनोसेरस, तो आपको ये याद रखना है। ओके, अब बिहार में सिर्फ एक ही है और जो कि है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ईजिली आप याद कर लेंगे इसको, वाल्मीकि। ठीक है, सो वाल्मीकि नेशनल पार्क। ओके, वाल्मीकि एज द नेम सजेस्ट। ठीक है, वाल्मीकि जी ने, ठीक है, रामायण लिखी थी। तो आप आसानी से याद कर लेंगे कि जो बौद्ध धर्म है वहाँ पर सबसे ज़्यादा उभरा है। ठीक है, तो जितने भी आप ऐसे याद कर सकते हैं वाल्मीकि, तो आप इसको याद कर सकते हैं रामायण लिखी। ठीक है, रामायण मतलब कि धर्म से संबंधित है, तो धर्म जो हुआ यहाँ पर बौद्ध धर्म ज़्यादा हुआ, यानी कि धर्म के काम यहाँ ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, तो जैसे भी आप याद कर पाएँ। ओके, फिर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ओके, इसको कई बार एसएससी ने पूछा है। ठीक है, ये तो ये याद रखिएगा। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इंद्रावती। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट बट कंपेयर टू गुरु घासीदास लेस इम्पोर्टेंट। बाकी सब इम्पोर्टेंट है, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, गुरु घासीदास कई बार पूछा गया है। ओके, फिर है कंगर घाटी नेशनल पार्क। ओके, अब आते हैं गोवा। तो गोवा में ये जो है ना, ये मोलम, ये कई बार पूछा गया, मोलम नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। मोलम नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन गोवा। ओके, अब आते हैं गुजरात। गुजरात में जैसे कि आप जानते हैं गिरवन है, गिर फॉरेस्ट यानी गिरवन इन गुजरात। ओके, ब्लैक बक, तो ब्लैक बक ईजिली याद कर लेंगे सलमान खान के केस से। सलमान खान का केस हुआ था जो ब्लैक बक का, उससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कच्छ की पहाड़ी यहीं, कच्छ की खाड़ी जो है वो यहीं है, तो आप इसको भी याद कर लेंगे ईजिली। अब ये एक याद करना पड़ेगा आपको, वंसदा। ठीक है, वंसदा। ओके, इसको आप याद कर लीजिएगा, वंसदा नेशनल पार्क, ये गुजरात में है। तो 4 नेशनल पार्क गुजरात में। हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सुल्तानपुर, तो सुल्तानपुर को आप ऐसे याद कर सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे याद करेंगे। सुल्तानपुर को ईजिली आप याद कर लेंगे, सुल्तान मूवी, सलमान खान जो कैरेक्टर था सुल्तान, ठीक है, उससे याद कर लेंगे। ठीक है, सुल्तानपुर पहलवान था, सुल्तानपुर हरियाणा में। ओके, फिर है कालेसर। ठीक है, कालेसर, तो मानेसर, मानेसर से याद रख लेंगे, मानेसर, मोनू मानेसर। ओके, उससे आप याद कर लेंगे कालेसर। ठीक है, ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस वन इज़ मोस्ट, पिन वैली। ओके, एंड देन ग्रेट हिमालय, दिस वन इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, सो दिस वन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, पिन वैली। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, पिन वैली कहाँ पर है भाई, हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ है, तो जाहिर सी बात है हिमाचल प्रदेश, ग्रेट हिमालय, नाम मैच कर रहा है, थोड़ा थोड़ा आप याद कर सकते हैं। फिर इंद्र किला है। ठीक है, इंद्र किला। ओके, खीर गंगा, तो खीर गंगा, ठीक है, यहाँ से नदियाँ बहती हैं तो इसलिए इसका नाम इस तरीके से पड़ेगा, खीर गंगा। ठीक है, सिंबल बाड़ा, ठीक है, याद करना है आपको, तो जिसमें मैं इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिया मैंने। ठीक है, पिन वैली, ग्रेट हिमालय, इन पर फोकस ज़्यादा करना है। ओके, अब आते हैं डाचीगम। ओके, जम्मू एंड कश्मीर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डाचीगम और सलीम अली। सलीम अली आप जानते हैं, सलीम अली कौन थे, ये थे और पक्षियों पे इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, और पक्षियों से ये माना जाता है कि ये बात करते थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट, आई थिंक यही बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट, और आई थिंक यही। ओके, तो आपको याद रखना है। ओके, ऑर्निथोलॉजिस्ट मीन्स जो पक्षी वैज्ञानिक होते हैं, एक तरह से पक्षी विज्ञान पे जो पढ़ स्टडी करते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम क्या, ठीक है, ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो ये इन्हीं के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो आप ईजिली इसको याद कर सकते हैं। ओके, तो इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट है ये, ऑर्निथोलॉजिस्ट जो बर्ड्स की स्टडी करता है। ठीक है, बर्ड्स स्टडी करने वाला, वे मानते हैं कि ये
पक्षियों से बातें करते थे। ओके, तो आपको ये ईज़िली याद हो जाएगा। ठीक है, तो सलीम अली और दाचिगम ये भी जम्मू कश्मीर में है। अब है किस्त भर, तो किस्त, ठीक है, किस्त भर, किस्त भर, तो किस्त भर, किस्त भर, ठीक है, तो किस्त भर आप इजीली याद कर लेंगे इसे भी। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, दाचिगम सलीम अली, ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस टू आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आते हैं लद्दाख में। लद्दाख में हमारा हेमिस नेशनल पार्क, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हेमिस नेशनल पार्क ये जो है ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का और हाईएस्ट आल्सो। ओके, तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ओके, हाईएस्ट आल्सो, तो आपको याद करना है ये। ओके, हेमिस लद्दाख में है, झारखंड में। ठीक है, बैतला, ठीक है, बैतला, इस पर कम पूछा गया लेकिन पूछ सकते हैं, चांसेस हैं। ठीक है, तो इसको भी मैं कलर कर देता हूँ। ठीक है, बैतला। कर्नाटका में आते हैं। कर्नाटका में देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। बांदीपुर इम्पॉर्टेंट, अंशी नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट, नागरहोल इम्पॉर्टेंट, बनरघट्टा इम्पॉर्टेंट, दीज फोर आर इम्पॉर्टेंट। ओके, कुड्रेमुख, अभी कुड्रेमुख ये MUKH होगा। कुड्रेमुख से अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन पूछ सकते हैं इससे भी। ठीक है, तो इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बांदीपुर और बनरघट्टा और अंशी, ओके, एंड नागरहोल, दीज फोर आर इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, तो आफ्टर दैट कम टू केरला। केरला में देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पेरियार, एक तो है ये आपका पेरियार नेशनल पार्क, एक साइलेंट वैली, पिन वैली जो थी वो वहाँ थी हिमाचल प्रदेश में, और केरला में कौन सी है, साइलेंट वैली, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, और उसके बाद अनामुड़ी, ठीक है ये। ओके, और एराविकुलम भी याद कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इससे भी कभी कभार पूछ लेते हैं स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में। ओके, और बाकी ठीक है आपको लर्न करने हैं। माथीकेट्टन और पंपादुम शोला, तो ये शोला तो याद है, अनामुड़ी शोला, पंपादुम शोला, ठीक है, इनको ईजिली याद कर लेंगे आप। ओके, और पेरियार, अनामुड़ी शोला, साइलेंट वैली, ये तीन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। ओके, तो आपको इस सारे के सारे नाम याद रखने हैं मध्य प्रदेश के। ओके, और मध्य प्रदेश में जाहिर सी बात है जंगल मोस्ट जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एरिया वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मोस्ट फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया यहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको यहाँ पे जाहिर सी बात है तो नेशनल पार्क भी यहीं ज़्यादा होंगे, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब मैं इसमें हाईलाइट करता हूँ कौन कौन से। कान्हा, ठीक है, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना और सतपुड़ा। कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क अभी नामियाबे से जो चीता आए थे वो यहीं कूनो नेशनल पार्क में रखे गए थे, यानी नामीबिया से जब चीते मंगाए गए थे, ठीक है, तो कहाँ रखे गए थे, कूनो में। नामीबिया से जो टाइगर आए थे, चीता, ठीक है, वो कहाँ रखे गए थे, कूनो में। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नामीबिया से चीता आए थे। उसके बाद बाकी आप इनके नाम याद रखना। हाँ, ये फॉसिल वाला भी याद रखिएगा, ठीक है, फॉसिल वाला ये, ओके, इसको भी याद करिएगा। ठीक है, मांडला प्लांट्स फॉसिल नेशनल पार्क। ओके, और माधव नेशनल पार्क ये भी है। संजय, संजय इंपॉर्टेंट है, संजय नेशनल पार्क। ठीक, ओके, और वन विहार है, ठीक है, जैसे कि वाल्मीकि था, वाल्मीकि विहार, ठीक है, बिहार में, ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, तो ये वन विहार यहाँ है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपको याद करने हैं। तडोबा पहले इंपॉर्टेंस, संजय गांधी। अब संजय और संजय गांधी में फ़र्क देखिएगा, ठीक है, संजय गांधी महाराष्ट्र में है और जो संजय है वो महाराष्ट्र में नहीं है, वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखना, ठीक है, दोनों में फ़र्क। और नवेगांव, तो नवेगांव तो ये ईजिली याद हो जाएगा, नवेगांव तो जगह ही है। ठीक है, तो आप ये ईजिली याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी गूगामल है, चंदौली है, गूगामल भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मणिपुर में आते हैं। मणिपुर क्यों खास हो जाता है, मणिपुर इसलिए खास हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ठीक है, इंडिया का फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ठीक है, तो याद रखना, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क है इंडिया का, जिसका नाम है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ। ओके, याद कर लीजिएगा। और सिरोही भी इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन केबुल लामजाओ इसलिए खास बन जाता है क्योंकि यहाँ पे ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ओके, पानी के अंदर सिचुएटेड एक तरीके से। ओके, और बात करते हैं मेघालय। तो मेघालय में देखिए नोकरेक, बहुत इंपॉर्टेंट है नोकरेक। ओके, तो नोकरेक, नोकरेक ये इंपॉर्टेंट है, नोकरेक।
इम्पोर्टेंट, ठीक है। ओके, बालफक्रम है, बालफक्रम, वालफक्रम, 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 वाल्फ अक्रम, वाल्फ अक्रम। ओके, वालफक्रम, तो ये याद रखना है आपको। ओके, बात करते हैं मिजोरम की। तो मिजोरम में जो इम्पोर्टेंट है वो मुरलेन, मुरलेन नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है। ओके, और नेक्स्ट है पांगपुरी, पांगपुरी, पांगपुरी। तो मिजोरम में पांगपुरी, ऐसे पूरी याद रखते, तो पांगपुरी, भांग की पूरी, पांगपुरी, ऐसे याद कर लेना ट्रिक बना के, ठीक है। तो मिजोरम में मुरलेन, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट। ओके, और पांगपुरी है, ये याद करना है। नागालैंड में बात करते हैं टांकी, इटांकी, ठीक है। तो टांकी, टांकी, टांकी नेशनल पार्क है ये नागालैंड में, ठीक है। एन से नागालैंड, एन से टांकी, एन साइलेंट है, टांकी, ठीक है। अब उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमलीपाल और भितरकनिका, बोथ आर इम्पोर्टेंट्स, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सिमलीपाल और भितरकनिका, भीतरकनिका, ऐसे याद कर लो, भीतर नाच रही है कनिका, भीतरकनिका। ओके, और सिमलीपाल, सिमलीपाल उड़ीसा में, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ओके, इम्पोर्टेंट। ओके, राजस्थान में बात करें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें, सरिस्का टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, केवला देव, केवला देव, केवला देव, रणथंबोर, माउंट आबू, रणथंबोर तो राजस्थान में पड़ता है तो याद हो जाएगा, माउंट आबू भी राजस्थान में पड़ता है, ये भी याद हो जाएगा, डेजर्ट राजस्थान में है तो ये भी याद हो जाएगा, और सरिस्का, ठीक है, याद करना, केवला, केवला देव भी राजस्थान में है तो ये भी याद हो जाएगा, सरिस्का से भी आपको याद करना है, ये दीज आर इम्पोर्टेंट्स। ओके, दीज 5, ठीक है, सरिस्का, केवला देव और माउंट आबू डेजर्ट, ठीक है, रणथंबोर। अब मुकुंदा, बस ये आपको एक एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा, मुकुंदा नेशनल पार्क, बाकी सब माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में पड़ता है, डेजर्ट तो राजस्थान है ही, डेजर्ट, रणथंबोर राजस्थान में, केवला देव राजस्थान में, ठीक है। ओके, सरिस्का आप याद कर लीजिएगा, सरिस्का, ठीक है। अब सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम में एक है जो कि इम्पोर्टेंट है, कंचनजंगा। ओके, कंचनजंगा पहाड़ी है। ओके, और ये कहाँ पड़ती है, सिक्किम में पड़ती है, तो वहीं नेशनल पार्क भी है, ठीक है। ओके, तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये कंचनजंगा, ठीक है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तो देखिए तमिलनाडु में गुंडी, तो गुंडापन, गुंडे तो साउथ की फिल्म होती है, गुंडे दिखाते हैं, तमिलनाडु को होते हैं वो, तो गुंडी याद कर लेंगे आप इजीली, गुंडी नेशनल पार्क, ठीक है। ओके, और उसके बाद मुदुमलाई, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट हैं। बाकी गल्फ ऑफ मन्नार, तो मन्नार की जो खाड़ी है वो तमिलनाडु में है, तो इसलिए गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क वही है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, ये भी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंदिरा गांधी, ओके, ये इंपॉर्टेंट है 3। और लास्ट बचा मुकुर्ती, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, मुकुर्ती। ओके, मुकुर्ती नेशनल पार्क कहाँ है, तमिलनाडु में। ओके, ये मैंने टिक कर हाईलाइट कर दिया जो इंपॉर्टेंट है पहले, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना में, अब देखिए तेलंगाना में जो जो इंपॉर्टेंट है, वैसे इसमें तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मानंदन रेड्डी, रेड्डी जहाँ आ जाए तो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना ही होता है, रेड्डी, ठीक है। रेड्डी मूवी है सलमान खान की। ओके, तो तेलंगाना में ब्रह्मानंदन रेड्डी, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। मृगवानी, मृग की वाणी, मृग की वाणी, तो मृगवानी कहाँ है, नेशनल पार्क कहाँ है, तेलंगाना है। महावीर हरिना वन स्थली, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आपको तीनों याद करने पड़ेंगे इसमें, तो इसमें आप तीनों ही याद कीजिएगा, ठीक है, मृगवानी, ब्रह्मानंदन और महावीर हरिना। ओके, तो ये इस तरीके से आपको वाल्मीकि जो है, ठीक है, वाल्मीकि बिहार में है, ठीक है, और महावीरा हरिना कहाँ है, तेलंगाना में, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा इसलिए फेमस बन जाता है क्योंकि यहाँ पे लेपर्ड नेशनल पार्क है, ठीक है, लेपर्ड का। ओके, और बाइसन भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाइसन, ठीक है। तो बाइसन और लेपर्ड त्रिपुरा में पड़ते हैं, बाइसन लेपर्ड त्रिपुरा में। अब आते हैं अपने उत्तर प्रदेश पर, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश पड़ता है वो उसके अंदर आता है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क, बहुत ईजिली आप याद कर सकते हैं इसे, दुधवा नेशनल पार्क एक ही उत्तर प्रदेश के अंदर। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जैसे आसाम में सारे इंपॉर्टेंट है, मानस, ओरंग, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी, ठीक है, ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें भी आपको कौन कौन से याद करने हैं, पहला तो जिम कॉर्बेट, ये पहला नेशनल पार्क है इंडिया का, ठीक है, तो इस वजह से ये खास बन जाता है, ठीक है, जिम कॉर्बेट। नंदा देवी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, पिन वैली हिमाचल प्रदेश में था, वैली ऑफ फ्लावर्स यहाँ है, ठीक है। और बात करते हैं राजा जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, और बाकी गंगोत्री और गोविंद पशु विहार इतने खास नहीं है, लेकिन अब पढ़ना है तो सबको याद करना है तो पड़ेगा, लेकिन हमें पहले 4 फोकस करना है, ठीक है।
नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर, राजा जी और जिम कॉर्बेट। ठीक, ये तो ये इस तरीके से आप इनको याद करिएगा। ठीक है, राजा जी वैली ऑफ फ्लावर्स में गए, वहाँ नंदा देवी को देखा और फिर जिम करने लगे। ऐसे करके ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं। ठीक है, राजा जी फ्लावर्स की वैली में गए, नंदा देवी को देख कर जिम करने लगे। ठीक, फिर गोविंद जी आए। ठीक है, पशुओं के साथ उन्होंने गंगोत्री में पशुओं को नहलाया। ऐसे करके ट्रिक बना के आप याद कर सकते हो, कोई कहानी ईजिली याद हो जाती है चीज़ें। ओके, अब आते हैं वेस्ट बंगाल पर। तो वेस्ट बंगाल में एक तो सुंदरबन, क्योंकि सुंदरबन डेल्टा यही ठीक है पड़ता है, तो सुंदरबन ईजिली याद हो जाएगा। अब बक्सर टाइगर रिजर्व, ठीक है ये। ओके, तो ये थोड़ा सा आप बक्सर, कहीं बक्सर से कन्फ्यूज़ ना हो जाए, बक्सर बिहार नहीं, बक्सर टाइगर रिजर्व, बक्सा है ये, बक्सर नहीं है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न देगा ये, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इस पर मैं 3 स्टार मार रहा हूँ। ओके, और उसके बाद बात करें तो सिंगालीला। ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, ये सिंगालीला है। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, फिर नेवरा है और गुरुमारा है। ओके, तो इस तरीके से हमने अपने सारे के सारे तो देख लिए नेशनल पार्क कौन से कहाँ पर हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने उनको कर दिया हाईलाइट। तो आप लोग ठीक है इनको याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ओके, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। बस आज के लिए इतना ही। ओके, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।